Good morning, everybody. Today in class 7th, we are going to discuss the solved NCERT textbook questions of chapter number 10, that is respiration in organisms. So the first question is, why does an athlete breathe faster and deeper than usual आफ्टर फिनिशिंग द रेस? रेस पूरी होने के बाद जो एथलीट होते हैं वो बहुत ही तेजी से और गहरी गहरी सांस लेते हैं. ऐसा क्यों होता है बेटा? ड्यूरिंग रेस एन एथलीट नीड्स मोर एनर्जी. रेस के टाइम एथलीट को मैक्सिमम एनर्जी चाहिए होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल कंडीशन. टू रिलीज एनर्जी मसल्स नीड मोर ऑक्सीजन. एनर्जी रिलीज करने के लिए क्या होगा बेटा? मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी. सो टू टेक मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ज्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए एथलीट क्या करते हैं? तेजी से और बहुत ही ज्यादा डीप पर ब्रीथ करते हैं. Second question, list the similarities and differences between the aerobic and anaerobic respiration. See the first. Aerobic respiration occurs in the presence of oxygen, whereas anaerobic respiration occurs in the absence of oxygen. Secondly, the products are obtained during the aerobic respirations are carbon dioxide and water. Secondly, anaerobic respiration में क्या होगा? Carbon dioxide and alcohol are produced as end product. In aerobic respiration, large amount of energy is released during the process, but in anaerobic respiration, very small amount of energy is released. Last point, occurs throughout the life. Aerobic respiration इस टाइम भी हम respire कर रहे हैं, so it is aerobic respiration. But anaerobic respiration occurs for a short period of time, that is while running, while doing exercise, heavy weightlifting, etc. See the third question. Why do we often sneeze when we inhale a lot of dust-laden air? डस्ट से भरी हुई एयर जब भी आप इनहेल कर लेते हैं तो आप स्नीज करते हैं. क्यों करते हैं? When we inhale a lot of dust-laden air, the particles get trapped in the air present in our nasal cavity. तो जब भी हम इस तरीके की अगर जो भी एयर होती है जिसमें डस्ट होती है इनहेल कर लेते हैं तो हमारे नॉस्ट्रल्स में बहुत ज्यादा नेसल कैविटी में हेयर्स होते हैं छोटे छोटे. वो हेयर्स क्या करते हैं? इन्हीं डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं, अंदर नहीं जाने देते रेस्पिरेटरी सिस्टम में. सो देन दे इरिटेट द लाइनिंग ऑफ द कैविटी. फिर क्या करते हैं? वो कैविटी की लाइनिंग को इरिटेट करते हैं और आपको लगता है कि आपको स्नीज करनी चाहिए और इसको साफ करना चाहिए. See the fourth question. Take 3 test tube, fill 3/4 of each with water, label A, B, C, keep a snail in test tube a water plant in test tube B, and in C, keep snail and plant both. Which test tube would have the highest concentration of CO2? 3 टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, तीनों में 3/4 वाटर फिल कर लीजिए, तीनों को लेबल कर दीजिए ABC, और पहले में आप डालेंगे स्नेल, सेकंड में आप वाटर प्लांट डालेंगे, तीसरे में दोनों चीजें डालेंगे. आप देखेंगे कि कौन से टेस्ट ट्यूब में कंसेंट्रेशन ऑफ इसका CO2 का ज्यादा है. तो टेस्ट ट्यूब C में स्नेल भी है और प्लांट भी है. सो द कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 विल बी हाईएस्ट इन टेस्ट ट्यूब C. See the question number 5. टिक द करेक्ट आंसर. इन कॉकरोच एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू. कॉकरोच में जो बॉडी में जो एयर एंटर होती है वो स्पाइरिकल्स के थ्रू होती है, तो आप लिखेंगे स्पाइरिकल्स. बी पोर्शन. ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड, अल्कोहल, वाटर. तो हैवी एक्सरसाइज के टाइम हमें क्रैम्प्स हो जाता है ताकि हमारी बॉडी में क्या होता है, उसमें लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है. See the C portion. Normal range of breathing rate per minute in an average adult person, it is 15 to 18 times per minute. Fourth one. During exhalation the ribs moves downward. Exhalation के टाइम क्या होता है? ribs क्या होते हैं? नीचे की तरफ मूव कर जाते हैं. 6th क्वेश्चन देखिए. Mark true if the statement is true, F if the statement is false. During heavy exercise the breathing rate of a person slow down. नहीं, it is false because वो breathing rate आपका बढ़ जाता है. Second, plants carry out photosynthesis only during the day and respiration only at night. क्या कहेंगे आप? False, क्योंकि ऐसा नहीं है. Third देखिए. Frog breathe through their skin as well as their lungs. Yes, ये बिल्कुल बात सही है. फ्रॉग्स क्या करते हैं? स्किन से भी ब्रीथ करते हैं और लंग से भी करते हैं. फोर्थ क्वेश्चन देखिए. द फिश हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन. सॉरी, फिश के जो होते हैं लंग्स नहीं होते हैं, उनके गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए. सी द फिफ्थ.
द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज ड्यूरिंग इनहेलेशन, यस इनहेलेशन करने पे चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ जाता है। मैच द आइटम्स विद द कॉलम ए एंड दोज इन द कॉलम बी। ईस्ट को आप किससे मैच कराएंगे? एल्कोहल से। डायफ्रैगम को किससे कराएंगे? चेस्ट कैविटी से। स्किन को किससे कराएंगे आप? अर्थवॉर्म से। और लीव्स को किससे कराएंगे? स्टोमेटा से। और देखिए फिश को किससे कराएंगे? गिल्स। और लास्ट में फ्रॉग को आप किससे कराएंगे? लंग्स एंड स्किन। ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8. Given below is a square letters in which are hidden different words related to respiration in organism. These words may be present in any direction, upward, downward, along the diagonals also. Find the words for your respiratory system. Clues about these words are given below the squares. सबसे पहले देखेंगे हम द एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट्स। क्या हो सकता है बेटा? ध्यान से देखिए, बहुत सारे वर्ड्स हैं उसमें। स्केलेटल स्ट्रक्चर सराउंडिंग चेस्ट कैविटी, मस्कुलर फ्लोर of chest cavity, tiny pores on the surface of the leaf, small openings on the sides of the body of an insect, respiratory organ of human being, opening through which we inhale, an anaerobic organism, an organism with tracheal system. आप देख सकते हैं बहुत सारे हैं, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको। लंग्स है, स्पाइरिकल्स है, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा डायफ्रैगम हो गया, रिब्स है आपका, नॉस्ट्रिल्स है, ट्रेकिया है, ईस्ट है आपका, और ये स्टोमेटा है। बहुत सारे हैं, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं फाइंड आउट। ओके, सी द 9th क्वेश्चन। द माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन विद देम बिकॉज, माउंटेनियर्स अपने साथ ऑक्सीजन लेकर जाते हैं। एट एन अल्टीट्यूड of more than 5 kilometers there is no air. The amount of air available to a person is less than that available on the ground. The temperature of the air is higher than that on the ground. The pressure of air is higher than that on the ground. So the correct answer is the amount of air available to a person is less than the available on the ground. मीन्स ऊपर एयर कम होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द ग्राउंड। सो ऊपर जब एयर कम होती है तो माउंटेनियर्स क्या करते हैं? अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करके लेके जाते हैं, जिससे वो प्रॉपर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर सके। सो दीज आर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सॉल्व्ड एनसीईआरटी क्वेश्चंस। सो यू हैव टू लर्न दीज आंसर्स फॉर योर एग्जामिनेशन आल्सो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।